Hello everyone. E-Learning Era by Sonia Paruthi is here with the explanation of work, energy and power, which is the chapter of physics. Work, energy and power. See, what is work? Work is the product of force and displacement. Work is represented by W and force by F and displacement by S or D, whatever you prefer. देखो, अगर कोई ब्लॉक है, फॉर एग्जाम्पल ये जो ब्लॉक था वो पहले यहाँ पर पड़ा था, ठीक है, हमने उस पर फोर्स लगाया तो उसने अपनी पोजीशन चेंज कर दी, वो यहाँ से यहाँ पर आ गया, तो वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसकी पोजीशन में चेंज आया, तो जो भी डिस्प्लेसमेंट आया और जितना फोर्स लगाया उन दोनों का प्रोडक्ट वर्क कहलाता है, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल कि अगर उसमें कोई एंगल बने या फिर कोई थीटा आए तो वो भी इंक्लूड करते हैं, तो वो हो जाता है एफ डी कॉस थीटा या फिर एफ एस कॉस थीटा। इसकी यूनिट क्या होती है? जूल। यूनिट ऑफ वर्क इज़ जूल। और देखो, अगर फोर्स फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया, फोर्स इस डायरेक्शन में लगा है और अगर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है तो वो नेगेटिव वर्क डन देगा क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। अब देखो, एनर्जी क्या होती है? एनर्जी इज़ द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। किसी भी काम करने के लिए जो हमारी कैपेसिटी होती है, जो हमारी एबिलिटी होती है, वो एनर्जी कहलाती है। एनर्जी की यूनिट होती है जूल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर वॉट आवर, ठीक है। नाउ कम्स पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी ड्यू टू पोजीशन or configuration or even height, you can say, that is potential energy. For example, energy of stressed or compressed spring, energy of water collected at height, energy of spring in watch. And what is gravitational potential energy? Gravitational potential energy is equal to mgh. M represents mass, g is gravity and h is height. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स हाइट। ये हाइट के लिए होती है। लेट्स सी व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी ऑफ बॉडी ड्यू टू मोशन। वो एनर्जी जो किसी भी बॉडी के मोशन की वजह से होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। द फॉर्मूला फॉर द काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर। एम इज द मास एंड वी इज द वेलोसिटी। Principle of conservation of energy. It states that energy can neither be created nor be destroyed. Only it can be transformed from one form to the another form. जो एनर्जी है ना तो हम उसको बना सकते हैं ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। एनर्जी को सिर्फ उसके जो फॉर्म्स हैं उसको चेंज किया जा सकता है, वो वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में चेंज हो सकती है। Let's discuss about some equipments which are used to transform the energy. See, dynamo. Dynamo transforms mechanical energy to the electrical energy. Candle, chemical to light and heat energy. Microphone, sound to electrical energy. Loudspeaker. Loudspeaker transforms electrical to sound energy. Solar cell, solar to electrical energy. Tube light, electrical to light energy. Electric bulb, electrical to light and heat energy. Battery, chemical to electrical energy. Electric motor, electrical to mechanical energy. Sitar, mechanical to sound energy. Relation between momentum and kinetic energy. The relation is kinetic energy is equal to P square upon 2m. P is representative of momentum and m is mass. What is power? Power is the rate of doing work. Power is equal to work done upon time and the unit is watt, that is joule per second. Horsepower. What is horsepower? Horsepower is the practical unit of power and 1 horsepower is equal to 746 watt. See, the question is the kinetic energies of a truck, a car and a motorcycle are the same if the same stopping force are applied
and they stop at distance x, y and z respectively, what will the relation be? See, अगर कोई ब्लॉक है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो वो नेगेटिव होता है ना। अब देखो, इन्होंने वैसे भी फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू, सॉरी वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर जो फोर्स है वो तो सेम अप्लाई किया गया है, तो ऑब्वियस सी बात है वर्क को सेम रखने के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट को सेम रखना पड़ेगा ही, ठीक है। सो द रिलेशन विल बी एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड। देखो एक क्वेश्चन है, आफ्टर ड्रॉपिंग द बॉल ऑफ इक्वल वेट ऑफ आयरन एंड वुड इन द एयर फ्रॉम द सेम हाइट, अगर सेम हाइट को हम, एक बॉल है आयरन की और एक बॉल है वुड की, उसको गिराते हैं तो क्या होगा। देखो एक आयरन की बॉल है और एक वुड की बॉल है, उन दोनों का जो मास है वो तो सेम है, मतलब वेट है जो वो तो सेम है। तो पर अगर वेट सेम है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो वुड है उसका साइज़ बड़ा होगा। अगर साइज़ बड़ा है तो वहाँ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी जो लगेगा वो ज़्यादा लगेगा, तो उसकी वजह से जो फ्रिक्शन होगा ऊपर की तरफ को वो भी ज़्यादा होगा उसकी साइज़ की वजह से। तो वी कैन से द वुडन बॉल, जो वुडन की जो बॉल होगी वो थोड़ी देर में नीचे गिरेगी, ठीक है। Now see, the question is, pieces of equal size of wood, iron and wax are dropped from the same height to the earth. Which piece will reach the earth surface first? देखो अब इनका जो साइज़ है वो तीनों का तो साइज़ इक्वल ही है ना, वुड, आयरन और वैक्स का। तो जब उसको सेम ही हाइट से ड्रॉप करना है तो जो ग्रेविटी, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा यानी जो जी लगेगा वो इक्वली लगेगा, और जो ऊपर फ्रिक्शन लगेगा फोर्स अपवर्ड की डायरेक्शन में वो भी सेम ही होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो तीनों के तीनों हैं वो एक ही साथ नीचे गिरेंगे, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज्ड 3 times देन काइनेटिक एनर्जी विल बी। अब हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ mv²। तो जो वेलोसिटी है उसको 3 times कर देंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 9 times। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कार्ब्यूरेटर, कार्ब्यूरेटर का यूज़ क्या होता है, इंजन वगैरह में होता है ये। इट्स यूज़ इज़ ब्लेंडिंग एयर विद पेट्रोल, एयर को पेट्रोल के साथ ब्लेंड करना। 2 objects of mass 1 gram and 4 gram are moving with the same kinetic energy. The ratio of the result of their linear velocity will be, देखो 1 ग्राम है और एक 4 ग्राम है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी इक्वल है। लेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 ग्राम बी k इज इक्वल टू ½m1v1² एंड लेट इट बी इक्वल टू ½ m2v2²। तो वहाँ से हाफ तो कट जाएगा, तो m1v1² इज इक्वल टू m2v2²। तो वहाँ से हमारा निकलेगा v1² अपॉन v2² इज इक्वल टू m2 अपॉन m1। तो v1 अपॉन v2 विल बी इक्वल टू √ of m2 upon m1, and we know m2 is 4 and m1 is 1. It is in under root, so the ratio will be 2:1. Hope you have understood. Please like, share and subscribe, and don't forget to leave a comment in the comment box.